Now class 9th we are starting with the new topic efflorescent substance, and over here I have made the two diagrams. This is the efflorescence crystal which later on changes to amorphous powder. I just want to talk about the efflorescent crystal first. They are crystalline in nature. They are hydrated salt. Hydrated means they will contain water molecules, right? First thing. Second thing is that the substances are always known as efflorescent substance. I'm not writing the words substance, but you understand efflorescent substance. The phenomena or the process through which this occurs is known as efflorescence. Now first we'll focus on it. Now what happened when these substances, ठीक है, ये कोई क्रिस्टल है, efflorescent substance है, efflorescence crystal है, जैसे for example हमने लिया copper sulfate dot 5 water. This is coming in this scenario. Now you will be surprised, this same example is coming in water of crystallization. It is also coming in hydrated substances, and it is also coming in efflorescent crystals. So please make sure when you are learning something like that, then make sure that in all different cases where it is coming. So efflorescence crystal, if you see that it has a fixed number of water molecules, what happened when you are keeping it in the atmosphere, they loses their moisture पार्टली और कम्प्लीटली. इट्स नॉट फिक्स कि पूरा ही इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स गायब हो जाए, लेकिन जब आप इसको खाली में ऐसी सपोज करो एक कंटेनर है, आपने इसमें कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर को रखा और आपने छोड़ दिया, और जब आप लौट के आएंगे तो क्या हो जाएगा कि हो सकता है कि कुछ पोर्शन वाटर का इसका अपने आप इवेपोरेट हो जाए, अपने आप निकल जाए, लूज़ कर जाए वो मॉइस्चर को, है ना, एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर लूजेज दैट मॉइस्चर. तो वाटर मॉलिक्यूल को वो लूज़ कर देता है, ठीक है, और वो अपने आप को एमॉर्फस फॉर्म में यानी एक पाउडर फॉर्म में बना लेता है, ठीक है. यू आर गेटिंग माई पॉइंट. दैट थिंग आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि व्हेन क्रिस्टलाइन, दीज आर द क्रिस्टलाइन hydrated salt, when they are exposed to the atmosphere, they lose their moisture, means water crystallization they are losing. They can be completely, they can lose, or they can lose partly, and they change themselves to amorphous powder or in amorphous state. So that is known as your efflorescent substance. The substance which is showing this thing is efflorescent substance, and the phenomena is known as efflorescence. So this is clear to you all. क्या हुआ, सब्सटेंस लिया आपने, उसको जब एटमॉस्फेयर में रखा तो उसने अपने जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो लूज़ कर दिए, ठीक है. हो सकता है कि सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स के लूज़ हो जाएं, हो सकता है कि पार्टली ही लूज़ हुए हों और अभी भी तीन लूज़ हुए हैं, बाकी 2 बचे हों. तो दोनों कंडीशन है, कम्प्लीटली भी लूज़ कर सकता है वो, या फिर वो पार्टली भी लूज़ कर सकता है, ठीक है, ठीक है. और उसके बाद वो अपने आप को किस स्टेट में चेंज कर देता है, एमॉर्फस स्टेट में चेंज कर देते हैं या पाउडर फॉर्म में स्टेट कर देते हैं. तो दिस इज़ योर efflorescent substance. आई एम शोइंग द डेफिनेशन फ्रॉम योर बुक. प्लीज़ मेक श्योर यूज़ वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन फ्रॉम योर बुक. So the next head is deliquescent substance. I have made the 2 diagrams. In this thing container I have kept the deliquescent crystal or the deliquescent substance. So what happened, when you are placing it in the atmosphere, these absorb moisture, है ना. उन लोग ने क्या करा था, moisture को lose करा, अपना water molecule lose करा. इनने क्या करा, moisture को absorb करा. So they absorb the moisture, and after absorbing the moisture they change themselves to the liquid state, ठीक है. तो ये solid होते हैं शुरू में और अपने आप को फिर किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पहले ये solid होते हैं. जब ये moisture को उधर moisture उन्हें लूज़ करा था, इन्होंने क्या करा, moisture को absorb करा, है ना, पानी को जो एटमॉस्फेयर में था उसको एब्जॉर्ब करा और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लिया, लिक्विड स्टेट में. ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है. सब्सटेंस जो था, जो जिनने ये प्रोसेस शो करी, उसे आपने डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस कहा, ये डेलिक्वेसेंट कहा. फिनोमेना जो हो गया ये पूरा, उसको आपने क्या कह दिया, डेलिक्वेसेंस. ये आपका फिनोमेना है, राइट. सो आई एम अगेन टेलिंग यू, when you are keeping these deliquescent substance or when you are exploring them in the atmosphere, they absorb moisture, so from the atmosphere, and they dissolve in the absorbed moisture, okay, and they change their states to liquid state or liquid state. Basically they form a saturated solution for that. So that's why I made a small, mean these are the substances which absorb moisture and they change themselves to a liquid state. I am again telling you in the general form, please don't write down the definition should be specific and it should be the bookish language.
This is your definition. This thing you have to remember. Substance which shows this thing, that is deliquescence. Phenomena is known as deliquescence, and the substance is deliquescent. So there are certain examples. Just see: FeCl3, calcium chloride, NaOH, KOH, magnesium chloride. These are the substance which comes in deliquescence crystals. Now children, there are two portions in your books. This thing you have to remember, that efflorescence when occurs when the vapor pressures of the hydrated crystals exceeds the vapor pressure of the atmospheric humidity. Hence efflorescence is minimum during humid condition. So this is the question, why the efflorescence is minimum during the humid condition. Humid condition अभी आप समझ रहे हैं ना, रेनी सीजन जब होता है तो दैट इज़ द ह्यूमिड कंडीशन होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है इफ्लोरेसेंस इज मिनिमम, बाय इफ्लोरेसेंस मिनिमम ड्यूरिंग ह्यूमिड कंडीशन, और इन प्लेस ऑफ ह्यूमिड दे कैन राइट डाउन रेनी सीजन और मानसून सीजन्स, ठीक है, और मानसून कंडीशंस। तो योर आंसर विल बी इफ्लोरेसेंस अकर्स व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ द हाइड्रेट क्रिस्टल्स इज एक्ससीड द वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। ये इफ्लोरेसेंस का रीज़न है कि इफ्लोरेसेंस क्यों अकर करता है, क्योंकि जो हाइड्रेटेड क्रिस्टल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ देखा, आपका ये हाइड्रेटेड क्रिस्टल है, ठीक है, यही इफ्लोरेसेंस शो कर रहा है, ये आपका इफ्लोरेसेंट क्रिस्टल है, ठीक है, ये आपको इफ्लोरेसेंस शो कर रहा है। अब इफ्लोरेसेंस इसमें कब होगा, किस वजह से होगा, जब इस क्रिस्टल का, ये क्रिस्टल है बेसिकली, कोई भी आप हाइड्रेटेड क्रिस्टल यूज़ करोगे और दिस हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स विल हैव द वेपर प्रेशर, तो इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, 100% इसका वेपर प्रेशर होगा, है ना। जब इसको हीट करोगे तो ये वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ये वेपर प्रेशर जो हाइड्रेटेड क्रिस्टल का है ये ज़्यादा हो जाए कंपैरिजन टू वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो तब इफ्लोरेसेंस अकर होगा आपका, ठीक है, इफ्लोरेसेंस की फिनोमेना तब होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ सी द इफ्लोरेसेंस इज मिनिमम ड्यूरिंग द ह्यूमिड कंडीशन, और द वाइस वर्सा यू कैन से द इफ्लोरेसेंस इज मैक्सिमम ड्यूरिंग द समर कंडीशंस, राइट। नेक्स्ट है डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसेंस कब अकर करता है, ये तो आपने तब देखा इफ्लोरेसेंस कब अकर हुआ। अभी आप डेलिक्वेसेंस को देखो, वो कब अकर होता है, जब आपका वेपर प्रेशर या फिर एक्वस टेंशन डेलिक्वेसेंस क्रिस्टल के इज़ वेरी लो, ठीक है, ये कम हो जाए, ठीक है ना, कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। वहाँ पे क्या था, ह्यूमिडिटी कम थी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उल्टा चल रहा है, एक को याद करना, दूसरा अपने आप समझ में आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, तुमने इफ्लोरेसेंस क्रिस्टल हाइड्रेटेड, वेपर प्रेशर ज़्यादा हो गया, वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ वर्ड चेंज करो, डेलिक्वेसेंस वेपर प्रेशर ज़्यादा आपकी हो जाए और ना, सॉरी, लो हो जाए, और वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कम हो जाए, यहाँ उल्टा चलेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो बेसिकली ये कब ज़्यादा होगा, कौन सी कंडीशन में ज़्यादा होगा, ये ड्राई कंडीशन में ज़्यादा होता है भाई। जब आपकी ह्यूमिडिटी कम होगी तभी तो काम होगा। तो जब समर सीज़न होता है, जब हॉट कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन पे डेलिक्वेसेंस जो है वो आपका बेसिकली इज़ ड्राई कंडीशन होगा, तो ये मिनिमम रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया रखा ना, कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, यानी ह्यूमिडिटी की कंडीशन ज़्यादा होनी चाहिए। तो ड्राई कंडीशन में सॉरी ये मिनिमम रहेगा, और ह्यूमिडिटी वाली कंडीशन में, ह्यूमिडिटी कंडीशन अगर होगी तो ये मोर होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा। और यहाँ पे क्या था, ह्यूमिडिटी की कंडीशन होगी तो ये कम होगा।
one more question is been asked. Common salt turns moist on exposure to air. Means you are keeping the salt for a time period and you are seeing after some time it's become sticky. है ना, नॉर्मल जो NaCl जो घर में आप नमक यूज़ करते हैं, इट बिकम स्टिकी. वाई दिस हैपन? कॉमन सॉल्ट जो है, जो NaCl है, इट इज़ नॉट डेलिक्वेसेंट इन नेचर. इट इज़ नॉट एट ऑल डेलिक्वेसेंट. इट्स नॉट डेलिक्वेसेंट. दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड. जो सॉल्ट आप घर में यूज़ कर रहे हैं वो डेलिक्वेसेंट नहीं होता है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने लगे. बट दैट पर्टिकुलर सॉल्ट ऑलवेज कंटेन्स योर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड. उसमें होता है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड पड़ा होता है, विच वर्क्स एज एन इम्प्योरिटीज़, एंड दीज इम्प्योरिटीज़ आर डेलिक्वेसेंट इन नेचर. तो ये क्या कर देती हैं, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर देती है. दे बेसिकली दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर, ठीक है, फ्रॉम एयर. दैट्स वाई योर कॉमन सॉल्ट जो होता है वो टर्न स्टिकी एंड वेट, ठीक, ड्यूरिंग ह्यूमिड कंडीशन. बरसात में ज़्यादा होता है, धूप वाली कंडीशन में नहीं होता है. दिस थिंग ऑलवेज हैपन इन द ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड कंडीशन और इन द ह्यूमिडिटी पार्ट और इन द रेनी सीजन्स और द मानसून सीजन्स, तब ये कंडीशन होती है, नॉर्मल कंडीशन नहीं होती. ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में पूछा जाता है. Now children, we are focusing on the hygroscopic substance. Be very clear to this concept because children do get confused with hygroscopic and deliquescence, because both have the same tendency of absorbing the moisture. Hygroscopic are also absorbing the moisture from the atmosphere or from the air, right? And but they are different from deliquescent. Deliquescent always change their state. You know that whenever we are using the deliquescent part, जैसे अगर आपने deliquescence if you are using, so if it is solid it change itself to a liquid state, ठीक है ना. They are changing their state of matter. But in hygroscopic both have the same nature. It is also absorbing the, both are absorb moisture. Both have the same taste that they absorb moisture from air बोल दो या atmosphere बोल दो. Both are the same thing, but they this hygroscopic one लिख देती हूँ, hygroscopic, and this is deliquescent, right? Hygroscopic, they do not change their state. I have written, if you are using a solid one then it will remain at the end also, it will change, it will be solid. मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा बट इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मैटर. लिक्विड आपने यूज़ करा है तो लिक्विड ही रहेगा, ठीक है. ये दोनों में डिफरेंस होता है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट यू आर यूजिंग. एक्चुअली डेलिक्वेसेंस में ना वी आर मोर द टाइम वी आर यूजिंग द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. इसमें हम लोग ज़्यादातर है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स अपने आप को क्या है, लिक्विड कंडीशन में कन्वर्ट कर लेते हैं. हाइग्रोस्कोपिक में क्या होता है कि आप ज़्यादातर है ना एमॉर्फस सॉलिड होते हैं, वो ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में होते हैं तो वो अपने आप को कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है. सो दे रिमेन एज सच ओनली. सो आई हैव रिटन सर्टन एग्जांपल्स लाइक सॉलिड में आई हैव रिटन फ्यू एग्जांपल. क्विक लाइम में कैल्शियम ऑक्साइड है ये, दिस इज क्विक लाइम. phosphorus pentaoxide P2O5. There are plenty of examples in your books, they I have given you, so you write down. Liquid में concentrated sulfuric acid most prominent होता है which we use it. So I am showing you the definition what you have to learn from the book. I think this part is clear to you that hygroscopics both have the same tendencies. Both when they are exposed to the atmosphere they start absorbing the moisture from the air or from the atmosphere. But hygroscopic is not it's unlike deliquescence. It's not at all changing its state of matter. Means if you are using liquid initially it will remain liquid, solid later then it will be solid condition. That thing you have to keep it in mind. Children, please see the definition part. ये आपकी definition है that you have to learn. Now next is drying or the dehydrating agents. So let's first focus on the drying agents. मोस्ट ऑफ द दिस थिंग हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेज ना, देखो ड्राइंग एजेंट का मतलब भी वही है कि दे एब्जॉर्ब और रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द अदर सब्सटेंस. जैसे कोई सब्सटेंस है आप में से उसको आपने उसमें से पानी हटाना है, मॉइस्चर को हटाना है, तो आप ड्रायर तो यूज़ करोगे नहीं या गैस पे तो रखोगे नहीं कि वो मॉइस्चर उसको एब्जॉर्ब हो जाए. तो यू नीड अ ड्राइंग एजेंट्स, ठीक है. तो ड्राइंग एजेंट्स हैव अ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द और रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम द अदर सब्सटेंसेज. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड विच इज़ ये डेलिक्वेसेंट इन नेचर होता है, ठीक है. इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर. तो इसको बेसिकली आप है ना, इसको आप है ना, ये फिर मैं कह रही हूँ ये डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस में भी आएगा एंड इट विल ऑल्सो कम इन द ड्राइंग एजेंट.
इवन एज अ डेसिकेटिंग एजेंट, डेसिकेटिंग एजेंट में भी आएगा, ठीक है। सो देर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स दैट कम इन इट। तो बेसिकली क्या होता है, ये डेसिकेटिंग एजेंट का अभी हम तुम्हें दिखा दे रहे हैं, वाई दे आर कॉल्ड एज अ डेसिकेटिंग एजेंट, बिकॉज दे एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड दे वी यूज़ अ डेसिकेटर, डेसिकेटर की तरह हम यूज़ कर, डेसिकेटर एक एपरेटर्स होता है जिसमें हम यूज़ करते हैं। आई एम शोइंग यू फ्रॉम द बुक, ये है डेसिकेटर है, ठीक है, ये एपरेटर्स का नाम है, दिस इज़ डेसिकेटर। एंड नाउ यू एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड यू आर यूजिंग, सो इट वर्क्स एज अ ओवर हियर एज अ ड्राइंग एजेंट, और यू कैन से एज अ डेसिकेटिंग एजेंट। तो इसका काम क्या होगा, जब आप दूसरा सब्सटेंस, देखो यहाँ रखा हुआ है एक दूसरा सबसे, उसमें सपोज करो मॉइस्चर भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है ना, तो आपने क्या करा, इस डेसिकेटर में यू आर कीपिंग दैट सब्सटेंस, एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस पर्टिकुलर डेसिकेटर इज़ एब्जॉर्बिंग द मॉइस्चर, है ना, मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा सॉलिड, ठीक है, ड्राई हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, इट्स वर्क एज अ ड्राइंग एजेंट ऑल्सो, बिकॉज इट इज़ केप्ट इन द डेसिकेटर, सो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो वर्क एज अ डेसिकेटिंग एजेंट, ठीक है। और वैसे क्या है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, इट इज़ अ डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। So many names of it, of anhydrous calcium chloride. I think this is clear to you, children. Now let's come to the dehydrating agent. There are other drying agents also given. You can see it from the book. ये गैस पास कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, गैस को मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है। फ्यूज्ड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, कोई क्लाइम है जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी आप किसी गैस को यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी कि गैस आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो इससे रिएक्ट ना कर जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। वट एवर गैस यू आर यूजिंग, इट शुड नॉट रिएक्ट विद दिस थिंग, वट एवर ड्राइंग एजेंट्स यू आर यूजिंग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये थोड़ा आपको देख के लेना पड़ता है, मतलब अगर गैस एसिडिक है तो जो आप ड्राइंग एजेंट हैं वो एसिडिक ही रखिए। अगर आप बेसिक लेंगे तो क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेगा। तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, दैट व्हाट यू आर यूजिंग एज अ ड्राइंग एजेंट एंड व्हाट गैस इज बीन कमिंग, बोथ हैव द सेम नेचर। अगर एसिडिक है तो दोनों एसिडिक रहें, दोनों बेसिक हैं तो बेसिक रहें, राइट। इट्स एडिशनल, आई एम टेलिंग यू। Now dehydrating agents, we will see, they remove chemically combined water or elements of water from the compound due to the strong affinity of water. Basically you always use the hygroscopic you can say substances in this. They basically act as a dehydrating agent or for it. और बेसिकली क्या होता है, देखो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि आपका ड्राइंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं, और इट्स ऑल्सो वर्क एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंस, क्योंकि देखो मैंने इंग्लिश में बोला, यू विल नॉट गेट इट because it's very difficult to explain that, remove chemical combined water or the element of water from the compound. So there are certain compounds you know that have the water molecules in them, so you are removing the, and it is being combined inside. It's not like this, ये कंडीशन नहीं है कि आप सोचें ये आपने, ये बात मैं कह रही हूँ, ऐसी बात नहीं कह रही, मैं ऐसी बात कह रही हूँ जैसे फॉर एग्जांपल आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं ना, ग्लूकोज खाते हैं आप, ग्लूकोज जो है बेसिकली अगर आप देखें यहाँ 3 एलिमेंट्स है, कार्बन इज़ देयर, हाइड्रोजन इज़ देयर, ऑक्सीजन इज़ देयर। तो इसके पास क्या है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कंडीशन देखें तो ये दे फॉर्म वाटर, और कार्बन तो अलोन है, कार्बन अकेला रहता है। तो बेसिकली व्हाट हैपन कि इस कंपाउंड के अंदर ही वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस तरह के कंपाउंड्स के लिए बहुत बेटर होते हैं क्योंकि उनके अंदर ही वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइंड स्टेट में है। तो जब आप इसमें आप कॉन्सेंट्रेटेड, जैसे आपने ग्लूकोज लिया, आप ग्लूकोज में इफ़ यू आर इट इज़ 6 12 के उसमें आई एम राइटिंग, सो 6 आपने इसमें आप जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे, आप चाहे ऐसे लगा दीजिए या एरो पे लिख दीजिए, तो क्या हो जाता है, ये 6 कार्बन दे देता है और आपको 6 वाटर मॉलिक्यूल दे देता है। तो बेसिकली क्या करा तुमने, इसी कंपाउंड के अंदर आपने क्या करा, वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल लिया। अब आपके नहीं अंदर ही था वो कंपाउंड, ये चीज़ें अलग हैं, ये तो कंपाउंड से बाहर वाटर मॉलिक्यूल इतने अटैच थे, इसको रिमूव करना आसान है कि आपने ज़रा सा हीट करा, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। आप कार्बोहाइड्रेट्स को आप है ना, जैसे आप हीट करते हो तो वो अंदर है, मतलब दिख नहीं रहा है, वाटर है इसके अंदर लेकिन आपको दिख नहीं रहा है कि इसके अंदर वाटर है। आप चीनी को आप हीट करते हो,
हीट करते हो तो उसके बाद क्या होता है, उसमें देखते हो धीरे धीरे धुआं निकलने लगता है, फिर वो बहुत हीट कर दो, करना नहीं तो आपकी मम्मी आप लोग को बहुत मारेंगी। तो आप जैसे आपने किसी कंटेनर में इसको बहुत गर्म करते हो शुगर को, तो बेसिकली व्हाट हैपन, ये ब्लैक हो जाती है ना, पहले ब्राउन होती है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि बिल्कुल उसमें जितना वाटर मॉलिक्यूल्स होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, नीचे कंटेनर में क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है वो, है ना। तो ये कंडीशन होती है कि विद इन द इनसाइड द मॉलिक्यूल ओनली यू हैव द डेफिनेट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर बीन देयर, और वो कंबाइंड स्टेट में होता है, उस सब्सटेंस के अंदर कंबाइंड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप जैसे वैसे भी आप हीट करोगे कार्बोहाइड्रेट्स को तो आपको वाटर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको जल्दी फास्ट करना है तो आप उसमें थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए। ये देखा जाए तो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो वो क्या करेगा, आपको कार्बन दे देगा, ब्लैक ब्लैक रह जाएगा कार्बन, और आपको वाटर मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द केस ऑफ योर dehydrating agent. Now we have cover up with the chapter. Our entire chapter of water is completed because rest of the things are out of course from this year. So this is a short chapter. Please focus on it. Definitions हैं, definitions के examples हैं, and please make sure that whenever you are learning the definition, learn from your book. Use the bookish language. Don't try to write down by your own casual language as you are writing in Hindi or English. I am not asking you that. I want that when you are focusing on the definitions, if you want good marks 100 out of 100, then please follow the bookish language, right? और इसमें डेफिनेशंस आएंगी। अब डेफिनेशंस किसी फॉर्म में भी आ जाए, मे बी इन डिफरेंसेस, मे बी इन फिल इन द ब्लैंक्स, मैथ द टेबल्स, और रीजनिंग पॉइंट, है ना। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इसमें, कुछ ही क्वेश्चन जैसे कॉमन सॉल्व वाला है, इफ्लोरेसेंट डेलिक्वेशंस वाला है आपके पास, फिर आपके पास एक क्वेश्चन आता है उसमें इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला, है ना। फिर आपका वाटर का टेस्टलेस कैसे हो जाता है जब वो बॉयल आप वाटर यूज़ करते हो, है ना, और वापस का टेस्ट कैसे आया। तो दीज आर द स्मॉल क्वेश्चंस एंड यू विल सी इन द बुक ऑल्सो these types of questions in your back questions, and every year these type of reasons is asked from the water chapter. So make sure that when you are learning it definitions, so please try to follow up the book language, and reasoning questions also will come from this chapter. 100% sure shot है, reasoning will come from this chapter, and very difficult way the reasonings are coming na. So please make sure that whatever has been there in the book, and focus on that, and try to make your notes and learn the definitions. And the next videos I'll discuss with the question answers वगैरह, then you can do it in your copies.